Good morning, students. Welcome to today's lecture. So, in our last lecture, we had seen uh, the different types of fluid flow. So, our next topic is velocity potential, and this velocity potential is denoted by phi. Okay, it is denoted by Greek symbol phi. And again, इसका definition एक mathematical definition है. So, this velocity potential is simply defined as the scalar function of space and time. Okay, whose negative derivative with respect to any direction gives the component of velocity in that direction. Okay, make one correction here. Sorry, gives the component of velocity in that direction. Okay, so what is the definition? It is a sorry. Okay, so what is the definition? It is a scalar function of space and time. Okay, that means this velocity potential denoted by phi. Okay, it is a function of space. That means x, y, and z direction, and time. Okay, whose negative derivative. Okay, मतलब आपने 5 का negative derivative लिया with respect to any direction. That means आपने इसका negative with minus sign इसका derivative लिया with respect to x direction. So it gives the component of velocity in that direction. So u equals to minus del phi by del x. Similarly, v equals to minus del phi by del y. Okay, negative derivative of velocity potential with respect to y direction use the component of velocity in y direction. Okay, so v equals to minus del phi by del y. Similarly, the negative derivative with respect to z direction, so minus del phi by del z. It gives the component of velocity in z direction, that is w. Okay, so I think definition सबको समझ में आया. It is a mathematical definition. Okay, so what is the definition? The velocity potential, it is a scalar function of space and time whose derivative, negative derivative with respect to time in any direction gives the component of velocity in that direction. Okay, so it is denoted by Greek symbol phi. Okay, so mathematically, phi is a function of x, y, z, and time. Okay, similarly, as per the definition, the negative derivative of phi with respect to x direction, so minus del phi by del x, it will give us u. Then minus del phi by del y, it will give us v, and minus del phi by del z, it will give us w. Okay, now we will put the value of u, v, and w, or simply u and v. Okay, हम u, v का वैल्यू पुट करेंगे and w का वैल्यू पुट करेंगे in continuity equation. So our continuity equation will be del x of u. Okay, so del x of minus del phi by del x plus del y of minus del phi by del y plus del z of minus del phi by del z. तो ये नेगेटिव साइन बाहर जाएगा तो पूरे इक्वेशन में माइनस 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 हो जाएगा. So ये हम चेंजिंग साइन कर सकते हैं. Okay, and del x of del phi by del x is nothing but del square phi by del x square. That means double derivative. Okay, so we will have del square phi by del x square plus del square phi by del y square plus del square phi by del z square, that equals to 0. Okay, I think M3 में already आप ये टर्म से जा चुके हो. Okay, del square of del x square. Okay, plus del square of del y square plus del square of del z square. Okay, यहाँ से phi तीनों के इसमें phi कॉमन है. Okay, so मैं phi कॉमन ले रहा हूँ of phi, that equals to 0. Okay, so ये टर्म को क्या बोलते हैं? ये टर्म को लाप्लास इक्वेशन बोलते हैं, और आई थिंक इसको आप उल्टा डेल स्क्वायर, रिवर्स डेल स्क्वायर से डिनोट करते हो. सो डेल स्क्वायर ऑफ phi, that equals to 0. आप इसको इस तरह से लिखते हो. ओके, आई थिंक M3 में लाप्लास इक्वेशन नाम का एक चैप्टर था, उसमें आपने डिटेल में देखा है. ओके, so we can say this is nothing but it represents the Laplace equation. Okay, therefore Laplace equation of velocity potential
इफ दैट इज इक्वल्स टू 0. ओके, मतलब आपको प्रॉब्लम में क्या दिया रहेगा, प्रॉब्लम में आपको इस तरह दिया रहेगा, phi is given by एक्स वाई जेड, फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, या फिर एक्स वाई जेड लो, चलो एक्स वाई जेड. ओके, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, पहले डेल फाई बाय डेल एक्स निकालोगे, पहला डेरिवेटिव लोगे. ओके, डेल फाई बाय डेल एक्स. सो डेल फाई बाय डेल एक्स कितना होगा, डेल फाई बाय डेल एक्स. सो बेसिकली एक्स वाई और जेड कांस्टेंट है, सो एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, सो यहाँ पे वाई इंटू जेड. ओके, फिर आप उसका डबल डेरिवेटिव करोगे, मतलब फिर से एक बार डिफरेंशिएशन करोगे, डेल स्क्वायर फाई बाय डेल एक्स स्क्वायर. ओके, डेल एक्स स्क्वायर. सो अगेन यहाँ पे वाई जेड, यहाँ पे एक्स का कंपोनेंट नहीं है, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा. ओके, सिमिलरली डेल फाई बाय डेल वाई क्या आएगा, वाई चला जाएगा एक्स जेड, उसका सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई करूंगी 0 आ जाएगा. ओके, सिमिलरली डेल फाई बाय डेल जेड एक्स वाई हो जाएगा, उसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, डेल स्क्वायर फाई बाय डेल जेड स्क्वायर 0 हो जाएगा. ओके, तो इन तीनों का एडिशन करने पे 0 + 0 + 0 इज 0. ओके, देयरफॉर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है. देयरफॉर phi equals to x y z, it represent the possible case of flow. Okay, so remember condition क्या है, for velocity potential, in terms of velocity potential, the Laplace equation of velocity potential, okay, it should satisfy. That means it will represent the possible case of fluid flow. तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है. Then second is component of rotation. So component of rotation, for example हम omega z लेंगे. So we know omega z is given by 1/2 del v by del x minus del u by del y. अभी यहाँ पे v और u का वैल्यू पुट करेंगे. Okay, similarly del y is 1 by omega y is 1/2 del u by del z minus del w by del x, omega x equals to 1/2 del w by del y minus del v by del x. अभी यहाँ पे u v एंड w का वैल्यू पुट करेंगे. So omega z equals to 1/2 in bracket del del x. Okay, see del x और v का वैल्यू पुट करेंगे minus del phi by del y. Okay, minus del y of u is minus del phi by del x. Okay, so that equals to 1/2. यहाँ पे नेगेटिव साइन बाहर चले जाएंगे. Okay, so it will be del square phi of, पहला डिफरेंशिएशन कैसे है, पहला डिफरेंशिएशन y से होगा और सेकंड डिफरेंशिएशन x से होगा. ओके, सो इट इज del x del y. ओके, यहाँ पे phi का पहला डिफरेंशिएशन x से होगा और फिर सेकंड डिफरेंशिएशन y से होगा. तो ये del square phi of del y del x. ओके, so it is 1/2 minus del square phi of del x del y plus del square phi of del y del x. Okay, and सिमिलरली यहाँ पे ओमेगा वाई निकाल सकते हो. यहाँ पे आप u और w का वैल्यू पुट कर दोगे, तो यहाँ पे रहेगा 1/2 del del z of minus del phi by del x minus del x of minus del phi by del z. तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. सो इट इज 1/2 del square phi of del z del x plus del square phi of del x del z. ओके, सिमिलरली ओमेगा x में वैल्यू पुट कर दो 1/2 del del y of minus del phi by del z minus del z of minus del phi by del y. ओके, सो ये सॉल्व करने के बाद इट इज 1/2 minus del square phi by del y del z plus del square phi by del z del x. ओके, नाउ अभी हमारा कंडीशन क्या होता है, रोटेशनल फ्लो के लिए. ये रोटेशनल फ्लो के लिए बेसिकली ओमेगा z क्या होता है, 0 होता है. ओमेगा z 0 होता है. सिमिलरली ओमेगा y भी 0 होता है, ओमेगा x भी 0 होता है. ओके, सो हम क्या करेंगे, हम ये 1/2 को 0 को डिवाइड कर देंगे और ये जो नेगेटिव टाइम टर्म है इसको राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा. ओके, सो फाइनली वी विल हैव del square phi. Okay, del square phi of del x del y, del square phi of del x del y, that equals to del square phi of del y del x. Okay, that means आपको क्या करना है, प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम phi is suppose x y z, phi is x y z और suppose x square y square z square. Okay, so पहले हम del phi by del x निकालेंगे, मतलब हम x से डिफरेंशिएट करेंगे. सो x से डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे y स्क्वायर z स्क्वायर कॉमन है, सो इट इज 2x y स्क्वायर z स्क्वायर, y स्क्वायर z स्क्वायर. ओके,
अभी हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे y से, ओके। सो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर फाइव ऑफ डेल वाई डेल एक्स। हम सेकंड डिफरेंशिएशन y से कर रहे हैं और फर्स्ट डिफरेंशिएशन x से किया था, ओके। तो यहाँ पे अभी y से कर रहे हो तो 2x कांस्टेंट रहेगा, y स्क्वायर का रहेगा 2y इंटू 2y और z स्क्वायर कांस्टेंट है। सो फाइनली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4 एक्स वाई जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे फाइनली क्या आएगा 4 एक्स वाई जेड स्क्वायर, 4 एक्स वाई जेड स्क्वायर, ओके। ये क्या हो गया, डेल डेल स्क्वायर फाइव डेल वाई डेल जेड, मतलब ये राइट साइड हो गया। अभी हम लेफ्ट साइड निकालेंगे। लेफ्ट साइड के लिए पहला डिफरेंशिएशन y से करना है, ओके। सो डेल फाइव बाई डेल वाई, डेल फाइव बाई डेल वाई, ओके, डेल फाइव बाई डेल वाई। सो y से डिफरेंशिएट करो तो एक्स स्क्वायर और जेड स्क्वायर कॉमन कांस्टेंट है, यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर इंटू 2y इंटू जेड स्क्वायर। अभी हम सेकंड डिफरेंशिएशन x से करेंगे। सो डेल फाइव बाई डेल स्क्वायर फाइव बाई डेल एक्स डेल वाई, डेल एक्स डेल वाई डेल वाई, ओके। तो अभी यहाँ पे x से कर रहे हो तो यहाँ पे 2x आएगा, ओके। और ये 2y और z स्क्वायर कॉमन रहेगा, 2y z स्क्वायर, ओके। सो अगेन 2x इंटू 2y, सो इट विल बिकम 4xy 4xyz स्क्वायर, ओके। सो सी यहाँ पे भी 4xyz स्क्वायर है, यहाँ पे भी 4xyz स्क्वायर है। देयरफॉर del square phi of del x del y that equals to del square phi of del y del x, okay। so ये दोनों कांस्टेंट हो रहा है, that means the given flow is irrotational flow। तो आपको इस तरह प्रॉब्लम में चेक करना है, ओके। तो बेसिकली सिंपल प्रॉब्लम है, सिंपल डिफरेंशिएशन आपको करना है, ओके। सो यहाँ पे कंडीशन क्या है, उसका फर्स्ट डेरिवेशन विथ रिस्पेक्ट टू y एंड सेकंड डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, it should be equals to first differentiation with respect to x and second differentiation with respect to y, okay। so if these differentiations are equal, that means the given flow is a irrotational flow, okay। now what is the importance of this kinematics, okay। आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, सी आपके जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ओके, फॉर एग्जांपल कटिया, प्रोई, एनसिस, ओके। तो ये कैसे डिसाइड करते हैं कि ये जो गिवन फ्लो है, जो भी आपको जो फ्लो का ज्योमेट्री बना रहे हो, फ्लूइड फ्लो का कंडीशन दे रहे हो, तो कौन सा टाइप का फ्लो है। तो बेसिकली ये सारे मैथमेटिकल इक्वेशन अभी जो हम सीख रहे हैं, ओके, रोटेशनल चेक करने के लिए, रोटेशनल चेक करने के लिए, फ्लो हो रहा है कि नहीं, ओके। सो ये सब चेक करने के लिए उनमें मैथमेटिकल कोडिंग किया होता है, और आप जो भी कंडीशन डालते हो तो वहाँ पे एक प्रोग्राम रन होता है, वो चेक करता है कि फ्लो कैसे बिहेव करने वाला है, ओके। और इसी को हम सिमुलेशन बोलते हैं। तो जितने भी सिमुलेशंस होते हैं वो बेसिकली मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग होते हैं, ओके। सो ये कैसे होता है, ओके, ये आपको पता होने के लिए एक्चुअली हम काइनेमेटिक्स में, फ्लूइड डायनेमिक्स में और आगे जाके जो भी इक्वेशन देखेंगे, ओके, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, एनर्जी इक्वेशन, सो यही वहाँ पे वर्क करते हैं, ओके। सो हम यहाँ पे बेसिक सीख रहे हैं, ओके। जो भी मैथमेटिकल बेसिक होता है फ्लूइड फ्लो का, हम वो सीख रहे हैं, ओके। Therefore, remember, if omega z, omega y, omega x is 0, then the flow is irrotational flow, okay। So points to remember, first of all, पहला point क्या remember करना है कि for velocity potential, for the flow to exist, okay, the continuity equation must be satisfied, and for the flow to be irrotational flow, del square phi of del x del y, that should be equals to del square phi of del y del x. Similarly, del square phi of del z del x, it should be equals to del square phi of del x del z, and so on, okay। And second, the velocity potential should satisfy the Laplace equation, okay। So ये the point आपको remember करना है। So ये दोनों satisfy होता है, so it represent the possible case of steady incompressible irrotational flow, okay। After that, the next function or next property which we are going to see, that is called as stream function, okay। So again, stream function का mathematical definition है, it is defined as a scalar function of space and time, okay। So that means
it is denoted by psi. So psi is a function of x, y, z, and t. Okay, such that its partial derivative with respect to any direction gives the component of velocity at right angle to that direction. Okay, that means suppose ये आपका प्लस एक एक्सिस है. ओके, ये आपका प्लस वाई एक्सिस है, प्लस वाई एक्सिस, और ये आपका कौन सा है, ये माइनस एक्स एक्सिस है, और ये माइनस वाई एक्सिस है, माइनस वाई. So component of velocity in plus x direction is u. Component of velocity in plus y direction is v. Component of velocity in minus x direction is minus u, and component of velocity in minus y direction is minus v. Okay. So as per the definition, it is a partial. It is a scalar function of space and time whose partial derivative. Okay. That means partial derivative of psi with respect to x direction. Okay, so del psi by del x, it gives the component of velocity at right angle. So right angle में कौन सा angle है, basically x को right angle में y है, तो y का component of velocity है v. Okay, so del psi by del x equals to v. Okay, similarly अभी यहाँ पे actually हम कभी भी जो angle measurement करते हैं, okay, angle measurement is always done in एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ओके, सो यहाँ पे हमको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है. सिमिलरली हम इसका डिफरेंशिएशन विद वाई डायरेक्शन लेंगे. सो इट इज स्केलर फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम whose डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू प्लस वाई डायरेक्शन. ओके, सो प्लस वाई डायरेक्शन में आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो उसको नॉर्मल डायरेक्शन कौन सी है, उसको नॉर्मल डायरेक्शन है माइनस एक्स. ओके, सो माइनस एक्स का कॉम्पोनेंट क्या होता है, माइनस यू. ओके, so basically del psi by del x is plus v and del psi by del y is minus u. Okay, remember आपको एंगल मेजरमेंट है, जो राइट एंगल मेजर करना है वो हरदम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करना है. Okay, so it is a scalar function of space and time whose derivative with respect to any direction gives the component of velocity in normal direction. Okay, and remember angle is always measured in anti-clockwise direction. Therefore, del psi by del x equals to v and del psi by del y equals to minus u. Okay, or we can say u equals to minus del psi by del y. Okay, therefore we will put the above value in continuity equation. Okay, so u और v का value put करेंगे. So u का value क्या है, minus del psi by del y. Okay, so it will be del x of minus del psi by del y plus del y of v का value del psi by del x. Okay, so नेगेटिव साइन बाहर चला जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा डबल डिफरेंशिएशन ऑफ साई. ओके, विथ रिस्पेक्ट टू डेल बाय डेल एक्स, सो इट विल बी डेल स्क्वायर साई ऑफ डेल एक्स डेल वाई, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस डेल स्क्वायर साई ऑफ डेल वाई डेल एक्स. यहाँ पे वाई है, मिस्टेक हो गया, यहाँ पे फर्स्ट डिफरेंशिएशन एक्स है और दूसरा डिफरेंशिएशन वाई है. सो इट विल बी डेल स्क्वायर साई ऑफ डेल बाय डेल एक्स. Okay, so if the given condition is satisfied, इसको आप राइट साइड में ले जा सकते हो. Okay, so हो जाएगा del square y of del x del y, that should be equals to del square y of del y del x. So अगर ये condition satisfy होती है, therefore the continuity equation is satisfied and phi gives the possible case of fluid flow. Okay, so if above equation is satisfied, then the given equation represents the possible case of fluid flow. उसके बाद में हम चेक करेंगे रोटेशनल और इरोटेशनल. सो रोटेशनल इरोटेशनल इज गिवन बाय ओमेगा z इक्वल्स टू 1/2 del v by del x minus del u by del y. Okay, so put the values of u and v, so it will become 1/2 del x of v क्या होता है, del psi by del x. Okay, minus del y of u, so u क्या होता है, माइनस डेल साई बाय डेल वाई. तो ये माइनस साइन बाहर जाएंगे, सो प्लस हो जाएगा. ओके, और यहाँ पे x और x के डिफरेंशिएशन है, दैट मींस इट इज डबल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x. So it is del square phi by del x square plus del square phi by del y square. Okay, then for irrotational flow omega z should be 0, so इसको हम इक्वल टू 0 कर देंगे. So 1/2 0 से डिवाइड हो जाएगा. So finally you will have del square phi by del x square plus del square phi by del y square, that equals to 0.
So ये इक्वेशन कौन सा हो गया? लाप्लास इक्वेशन. Okay, therefore if the Laplace equation of stream function psi is satisfied, then the flow is irrotational flow. Okay, so basically आपको जो पॉइंट याद रखना है वो so if stream function is satisfied, Laplace equation of phi satisfied, then the given flow will take place. It is a possible case of flow. And if phi exists, that means del square phi of del x del y that equals to del square phi of del y del x, then the given flow is a rotational flow. Okay, so basically stream velocity potential और stream function की condition vice versa है. Okay, यहाँ पे रोटेशनल इरोटेशनल के लिए लाप्लास इक्वेशन है, वहाँ पे स्ट्रीम फंक्शन फाई में एग्जिस्टेंस ऑफ फ्लो के लिए लाप्लास इक्वेशन है. वहाँ पे डेल स्क्वायर फाई ऑफ डेल एक्स डेल वाई दैट इक्वल्स टू डेल स्क्वायर फाई ऑफ डेल वाई डेल एक्स वो सेटिस्फाई होता है तो इरोटेशनल फ्लो है. यहाँ पे डेल स्क्वायर साई ऑफ डेल एक्स डेल वाई इक्वल्स टू डेल स्क्वायर साई ऑफ डेल वाई डेल एक्स सेटिस्फाई होता है तो इट इज अ पॉसिबल केस ऑफ फ्लूइड फ्लो. ओके, so ये आपको याद रखना है. After that we will see the next definition, that is equipotential line. So equipotential line is nothing but the line along which the velocity potential phi is constant. Okay, that means कोई भी fluid flow हो रहा है, कोई भी fluid flow हो रहा है, so fluid flow में आपने जितने भी पॉइंट है जहाँ पे velocity potential phi constant है, okay, so आपने ये phi constant के जितने भी पॉइंट्स हैं उनको ज्वाइन कर दिया. ओके, तो ये लाइन को क्या बोलते हैं? ये लाइन को बोलते हैं इक्विपोटेंशियल लाइन. सो इक्विपोटेंशियल लाइन इज नथिंग बट द लाइन अलोंग व्हिच द वेलोसिटी पोटेंशियल फाई इज कांस्टेंट. ओके, सो फॉर इक्विपोटेंशियल लाइन फाई इक्वल्स टू कांस्टेंट, देयरफॉर डी फाई इक्वल्स टू 0. नाउ वी नो फाई इज अ फंक्शन ऑफ स्टडी फ्लो के लिए टाइम कांस्टेंट है. सो बेसिकली इट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड टी था, बट स्टडी फ्लो के लिए टी कांस्टेंट है, सो इट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई. ओके, सो phi is a function of, okay, phi is a function of x and y, x comma y. okay, तो अभी हम इसका कंप्लीट डिफरेंशिएशन लेंगे डी फाई. ओके, बट कंप्लीट डिफरेंशिएशन के लिए वो तो एक्चुअली दो प्रॉपर्टी का मतलब दो वेरिएबल का फंक्शन है. तो आपको क्या करना पड़ेगा? टोटल डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x प्लस पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y. दैट मींस del phi by del x into dx plus del phi by del y into dy. ओके, मतलब हमने क्या किया? टोटल डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x प्लस पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y बिकॉज इट इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y. ओके, सो डी फाई इज नथिंग बट del phi by del x into dx plus del phi by del y into dy. अभी del phi by del x ये क्या होता है? माइनस u. u क्या होता है? minus del phi by del x. So del phi by del x क्या होता है? minus u. Okay, so it is minus u. Similarly del phi by del y, यहाँ पे y है, sorry यहाँ पे y है, so that equals to minus v. Okay, so putting the value, so it is minus u dx minus v dy equals to 0. Okay, और okay, और ये d phi क्या होना चाहिए था? d phi equals to 0 इक्विपोटेंशियल लाइन के लिए, तो इसको हम इक्वेट टू 0 करेंगे. Okay, therefore for equipotential line d phi equals to 0, therefore minus u dx plus v, minus in bracket u dx plus v dy equals to 0, और नेगेटिव साइन 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा, so u dx plus v dy equals to 0. okay, so this line is nothing but equation of equipotential line. okay, this is nothing but equation of equipotential line. अभी हम इसको रिराइट करेंगे, v dy को राइट साइड में ले जाएंगे, so u dx equals to minus v dy, then dy, okay, 1 minute, u dx is equal to minus v dy. ओके, अभी हम dx को यहाँ डिवाइड करेंगे और माइनस v को यहाँ डिवाइड करेंगे. ओके, सो हमें क्या मिलेंगे? dy by dx equals to minus u by v. ओके, सो u dx equals to minus u by v. सो बेसिकली यहाँ पे dy by dx क्या होता है? ये स्लोप होता है. ये स्लोप को हम कोई स्लोप m1 बोलेंगे. ओके, सो स्लोप ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन इज माइनस u by v. ओके, ये अभी आपको याद रखना है. अभी इसके बाद में हम नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे और उसका स्लोप निकालेंगे और बाद में इनका रिलेशन देखेंगे.
सो नेक्स्ट डेफिनेशन इज स्ट्रीमलाइन. अब ये स्ट्रीमलाइन का दूसरा डेफिनेशन है, क्योंकि स्ट्रीमलाइन को हमने पहले भी डिफाइन किया है. स्ट्रीमलाइन का हमने क्या डिफाइन किया था? स्ट्रीमलाइन इज नथिंग बट एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन फ्रॉम द फ्लोइंग मास ऑफ फ्लूइड सच दैट टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर. ये हमने पहला डेफिनेशन देखा था. अब इसका स्ट्रीमलाइन का दूसरा डेफिनेशन है, इट इज अ लाइन अलोंग विच द स्ट्रीम फंक्शन फाई इज कांस्टेंट. ओके, सो ऐसा कोई लाइन जहाँ पे स्ट्रीम फंक्शन फाई कांस्टेंट रहता है, सो लाइन को क्या बोलते हैं? स्ट्रीमलाइन. ओके, so for streamline phi equals to constant, therefore d phi equals to 0. Again, phi is the function of x, y, z and t, but study flow के लिए t नहीं लेंगे, t constant, so it is a function of x and y. Therefore d phi करेंगे, so again d phi is del phi by del x into dx plus del phi by del y into dy. Okay, अब यहाँ पे del phi by del x ये प्लस v होता है, तो यहाँ पे हम प्लस v पुट कर देंगे, और del phi by del y माइनस u होता है, so इक्वल यहाँ माइनस u पुट कर देंगे, so v dx minus u dy equals to 0. Okay, now here again for stream function constant है तो उसका d phi 0 रहेगा. Okay, therefore v dx minus u dy equals to 0. So this is nothing but equation of streamline. Okay, अभी इसको हम u dy को राइट साइड में ले जाएंगे. Okay, और उसके बाद में dy by dx को डिवाइड करेंगे इधर और u को इधर डिवाइड करेंगे. So finally you will have dy by dx equals to v by u. Okay, so slope of equipotential line M2. Okay, slope of slope of streamline M2 is v by u, and slope of equipotential line कितना था ऊपर? minus u by v. Okay, minus u by v और यहाँ पे v by u. Okay, therefore we will see the relationship between streamline and velocity line. Sorry, पहले हम stream function और velocity potential का relation देखेंगे. So first of all, u equals to minus del phi by del x and v equals to minus del phi by del y. और स्ट्रीम फंक्शन के टर्म में u equals to minus del phi by del y and v equals to del phi by del x. तो हम लेफ्ट साइड के u इक्वेट कर देंगे. ओके, तो u हो जाएगा del phi by del x equals to minus del phi by del x equals to minus del phi by del y. माइनस माइनस कैंसिल हुआ. ओके, सिमिलरली v क्या होगा? v will be minus del phi by del y equals to del phi by del x. Okay, so equating this and cancelling sign, we will have del phi by del x equals to del psi by del y. So this is the relationship between phi and psi. Similarly, यहाँ पे del phi by del y equals to minus del phi by del x. So this is also the relationship between phi and psi. Okay. उसके बाद में second thing, 1 minute. Slope of slope of equipotential line m1 कितना था? minus u by v, minus u by v. ओके, और स्लोप ऑफ स्ट्रीमलाइन का स्लोप कितना है? v by u. ओके, so we will take the product m1 into m2, slope of equipotential line and streamline. So it is minus u by v into v by u. So u cancel होता है, v cancel होता है, so that equals to -1. Okay, so the product of the slope of two line is -1. So I think आपने M3 में सीखा होगा कि कभी भी दो लाइन होती है. Okay, दो लाइन होती है और दो, सपोज लाइन 1 का स्लोप m1 है और लाइन 2 का स्लोप m2 है. Okay, और ये दोनों लाइन का प्रोडक्ट जो है स्लोप का वो 1 है, -1 है. So basically these two lines are perpendicular to each other. Okay, so these two lines are always perpendicular to each other. Okay, but यहाँ पे एक्चुअली ये जो स्ट्रीम लाइन और इक्विपोटेंशियल लाइन होती है, ये लाइन नहीं होती है, ऑल्दो द नेम इज लाइन, बट दे आर कर्व्स. ओके, सो सपोज ये आपकी स्ट्रीम लाइन है, सॉरी ये आपकी इक्विपोटेंशियल लाइन है, फाई इक्वल्स टू कांस्टेंट. ये आपकी स्ट्रीम लाइन है, साई इक्वल्स टू कांस्टेंट. ओके, सो बेसिकली इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे. सपोज ये पहली लाइन का टेंजेंट है, ओके, और ये स्ट्रीम लाइन का टेंजेंट है. सो इनके टेंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं. ओके, तो बेसिकली ऐसे लाइन जिनके टेंजेंट परपेंडिकुलर है इनको ऑर्थोगोनल लाइन बोलते हैं. ऑर्थोगोनल लाइंस, ऑर्थोगोनल ORTHO, ऑर्थो GONL, गोनल लाइंस. ओके, सो बेसिकली स्ट्रीम लाइन एंड इक्विपोटेंशियल लाइन इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली. ओके, ये हरदम ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट होते हैं. ओके, अभी एक्चुअली
पीपीटी में मैंने डाला नहीं है, बट देयर इज आपको एक प्रैक्टिकल है जो एक्चुअली और में छूट जाता है, दैट प्रैक्टिकल इज ऑन फ्लो नेट। ओके, आपको फ्लो नेट बनाना है, फ्लो नेट। ओके, कोई भी गिवन फ्लूइड फ्लो के लिए फ्लो नेट बनाना है, तो इसके लिए आपको फ्लो एनालॉगी। ओके, अभी एक्चुअली फ्लो एनालॉगी के लिए हम करंट, ओके, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, इलेक्ट्रिक करंट और या इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी और फ्लूइड फ्लो, इलेक्ट्रिसिटी और फ्लूइड फ्लो इनके बीच में हम एनालॉगी देखेंगे। एनालॉगी मीन्स समांतरण। ओके, दोघांमध्ये काही समांतरण आहे ते आपण बघणार। ओके, नाउ व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रिक टू फ्लो? इलेक्ट्रिक फ्लो होने के लिए क्या लगता है? सपोज दिस इज टू प्लेट, ओके, इनके बीच में कंडक्टर होता है एंड पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी इज रिक्वायर्ड। मतलब यहाँ पे आप सपोज 50 वोल्ट अप्लाई करोगे या फिर यहाँ पे आप 12 वोल्ट अप्लाई करोगे और यहाँ पे 0 वोल्ट रहेगा। ओके, यहाँ पे 0 वोल्ट रहेगा V2। तो इनके बीच में जब पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी अप्लाई होगा तब फ्लूइड फ्लो होगा। ओके, एंड फ्लो टेक प्लेस फ्रॉम अ पॉइंट एट अ हायर पोटेंशियल टू अ पॉइंट एट अ लोअर पोटेंशियल। आपका जो करंट फ्लो होगा, करंट विल फ्लो from a point at a higher potential to a point at a lower potential. Similarly, यहाँ पे जो voltage potential होता है, that is replaced by velocity potential phi. Okay, आपका जो fluid flow होता है वहाँ पे velocity potential phi के कारण flow होता है। Okay, and flow always take place from a point at a higher potential. Okay, suppose phi 1 आपका एक पॉइंट है, यहाँ पे आपका फ्लूइड फ्लो है, फ्लूइड फ्लो में इनलेट पे वेलोसिटी पोटेंशियल phi 1 है, ओके, एंड आउटलेट पे वेलोसिटी पोटेंशियल phi 2 है। So basically flow will always take place when phi 1 is greater than phi 2. Okay, suppose phi 2 is greater than phi 1, phi 2 is greater than phi 1, इस केस में फ्लो जो है वो राइट टू लेफ्ट फ्लो होगा। ओके, so basically velocity potential difference is always required for fluid to flow. जैसे इलेक्ट्रिक potential difference is required for electricity to flow. Similarly, velocity potential difference is always required for velocity to flow. Okay, then second, यहाँ पे क्या होता है? What happens due to potential difference? Current is flowing. ओके, आप जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको कैसे मेजर करते हो? एम्पियर में मेजर करते हो। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे तो आप क्या बोलते हो? इतना ज्यादा करंट है, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर। सिमिलरली इन फ्लूइड फ्लो द मोमेंट ऑफ फ्लूइड पार्टिकल इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी। ओके, तो जितने ज्यादा फ्लूइड पार्टिकल मूव हो रहे हैं उतने ज्यादा फ्लूइड की वेलोसिटी रहेगी। ओके, देयरफॉर करंट in case of electrical flow is analogous to velocity in case of fluid flow. Okay, so basically जब करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है तो क्या रिक्वायर्ड होता है? वेलोसिटी पोटेंशियल डिफरेंस। सिमिलरली फॉर फ्लूइड टू फ्लो velocity potential difference is required. Then how you measure the flow of electricity in terms of current? Similarly, how you measure the flow of fluid particles in terms of velocity. Okay, then whenever the current flows, current में जो भी कंडक्टर होगा, ओके, और कंडक्टर जैसे आपने कॉपर का वायर लिया तो वहां पे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। आपने टंगस्टन या फिर दूसरा कोई मटेरियल लिया, ओके, आयरन का वायर लिया तो वहां पे कम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। ओके, दैट मीन्स आपने जैसे ही मटेरियल चेंज किया तो बेसिकली मटेरियल में कोई प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण करंट का वैल्यू चेंज होता है। सो दैट इज नथिंग बट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ओके, सो जब फ्लो होता है तो वहां पे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करता है। सिमिलरली जब हमारा फ्लूइड फ्लो होता है तो यहाँ पे एक विस्कोसिटी होती है। ओके, और सपोज आपने एक कप ऑफ ग्लास लिया फिल्ड विथ हनी एंड 1 कप ऑफ ग्लास फिल्ड विथ वाटर। आप दोनों को पोर करोगे, दोनों में सेम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट होगा, बट आप ऑब्जर्व करोगे कि honey is flowing at a slower rate and water is flowing at more speed. Why? Because here viscosity is playing the role and viscosity is opposing the flow. Okay, so जैसे electrical resistance होता है, okay, which opposes the flow of electron, here viscosity is there which resist or which opposes the velocity of flow. Okay, so जितना ज्यादा resistance होगा उतना ही कम
वेलोसिटी होगा, यहाँ पे जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही कम करंट फ्लो होगा. ओके, सो दिस इज एन एनालॉजी बिटवीन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्लो ऑफ फ्लूइड फ्लो. ओके, एंड इन दोनों के बीच में जो हम रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं, सो दैट इज इस्टेब्लिश इन द फॉर्म ऑफ फ्लो नेट. ओके, सो फ्लो नेट का जो एक्सपेरिमेंट है, okay, flow net experiment, it gives the analogy between the flow of electron and flow of fluid particle. So flow net में हम क्या करते हैं, basically हमारा experiment में हम क्या करते हैं, experiment में we take one area. Okay, in that area what we are doing, we are taking two electrical plates, two conducting plates, copper plate हम लेते हैं. ओके, और कॉपर प्लेट लेने के बाद हमारे एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि एक प्रोब होता है. ओके, एक प्रोब होता है जिससे हम उसका वोल्टेज मेजर कर सकते हैं. ओके, हम उसका वोल्टेज कितना है मेजर कर सकते हैं, और ये प्लेट को हम एक पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट करते हैं, एक नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट करते हैं. ओके, सो ऑन वन साइड पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड, on other side negative terminal is connected. Okay, then what is happening, during the fluid flow the current will flow from positive plate to negative plate. Okay, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, during the fluid flow we ये प्रोब को हम इंसर्ट करते हैं, और यहाँ पे 90 वो सपोज यहाँ पे 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो हम 9 वोल्ट के सारे पॉइंट्स आइडेंटिफाई करेंगे, 9 वोल्ट 9 वोल्ट 9 वोल्ट. ओके, हम यहाँ पे 4 से 5 9 वोल्ट के पॉइंट आइडेंटिफाई करेंगे, और इसका x और y कोऑर्डिनेट हम मेजर कर लेंगे. ओके, सिमिलरली 8 वोल्ट के पॉइंट्स आइडेंटिफाई करेंगे, 7 वोल्ट के पॉइंट आइडेंटिफाई करेंगे, 6 वोल्ट के पॉइंट आइडेंटिफाई करेंगे, 5 वोल्ट के पॉइंट, 4 वोल्ट के पॉइंट, और ग्राफ पेपर पे ये जो पॉइंट्स है इन सारे पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे. ओके, सो हमने क्या किया, कांस्टेंट वोल्टेज के जितने भी पॉइंट्स थे वो ज्वाइन कर दिए. ओके, तो बेसिकली फ्लूइड फ्लो में ये जो कांस्टेंट वोल्टेज के पॉइंट है, इट रिप्रेजेंट द पॉइंट ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन. ओके, ये जो लाइन रिप्रेजेंट करेंगे दैट विल बी इक्विपोटेंशियल लाइन. एंड नाउ वी नो इक्विपोटेंशियल लाइन एंड स्ट्रीम लाइन इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली. तो बेसिकली हम यहाँ पे उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कुछ जितना इनके बीच का डिस्टेंस रहेगा वही डिस्टेंस अज्यूम करके कुछ इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करेंगे. ओके, सो दिस लाइन विल रिप्रेजेंट लाइंस ऑफ स्ट्रीम फंक्शन phi equals to constant. ओके, सो दिस विल बी स्ट्रीम लाइन, दिस विल बी इक्विपोटेंशियल लाइन, और इस तरह से जो ये नेट लाइक स्ट्रक्चर बनता है इसको हम फ्लो नेट बोलते हैं. ओके, सो फ्लो नेट इज नथिंग बट इट इज अ graphical procedure in which a net like structure is formed. Okay, और ये जो phi रिप्रेजेंट करता है, phi जो है वो फ्लूइड का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है. ओके, ऑलरेडी स्ट्रीम लाइन का हमने डेफिनेशन देखा है, इट इज अ लाइन, it is an imaginary line drawn from the flowing mass of fluid such that tangent drawn at any point represent the direction of velocity vector. Okay, और ये phi का लाइन है, ये एक ऐसा लाइन रिप्रेजेंट करता है जहाँ पे phi is constant. Okay, so this is equipotential line and streamline. I think we are having 5 minutes. Okay, 5 minutes में हम एक numerical देख लेंगे, then our unit will be over. Okay, so 1 minute. 1 minute. Okay, हम एक दो न्यूमेरिकल देख लेते हैं, बाद में एक्चुअली यू कैन व्यू. So numerical number 1, a velocity potential phi is given by the expression phi equals to minus xy cube by 3 minus x square plus x cube y by 3 plus y square. Okay, so हमें phi दिया है, we are supposed to find the velocity component in x and y direction. So हमें u और v निकालना है, उसके बाद में show that phi represent possible case of flow. So हमें इसका Laplace equation equals to 0 prove करना है. So first of all, phi equals to xy cube by 3 minus x square plus x cube y by 3 plus y square. So taking the differentiation, we will have del phi by del x equals to y cube by 3 minus 2x plus 3x square y by 3. And del phi by del y equals to minus 3x y square by 3 plus x cube by 3 plus 2y. Okay. Therefore, ये del phi by del x, del phi by del y हमने differentiation करके निकाल लिया. तो ये equals to minus del phi by del x. ये del phi by del x को हम नेगेटिव साइन के साथ ओपन कर देंगे. So it is y cube by 3 plus 2x plus xy square.
सिमिलरली y इक्वल्स टू माइनस डेल फाई बाय डेल वाई, तो इसको आप नेगेटिव साइन से ओपन कर दो, सो इट विल बिकम वाई स्क्वायर बाय 3, सॉरी ये u ही है, ओके, v इक्वल्स टू माइनस डेल फाई बाय डेल वाई, माइनस साइन के साथ ओपन कर दो, ओके, तो इनका साइन चेंज हो जाएगा, सो इट इज एक्स वाई स्क्वायर, 3 कैंसिल होता है, सो एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस 2y। देन हमें चेक करना है वेदर फाई रिप्रेजेंट द पॉसिबल केस ऑफ फ्लो, ओके, तो हमें लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करना है, दैट मींस डेल स्क्वायर फाई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई बाय डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अभी डेल फाई बाय डेल एक्स हमें ऑलरेडी पता है, इसका फिर से डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पे वाई क्यूब का टर्म 0 हो जाएगा, यहाँ पे -2 आएगा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, मतलब 2 3 जा, ओके, 3 कैंसिल हुआ, यहाँ पे 2x हो जाएगा, तो इट इज -2 प्लस 2xy। सिमिलरली del phi by del y is minus xy square plus x cube by 3 plus y 2y, इसको y से डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -2xy, यहाँ पे y is absent to 0 and यहाँ पे +2, so it is -2xy plus 2। then put del square phi by del x square plus del square phi by del y square, value put करो, so it is -2 plus 2xy plus 2xy plus 2, so -2xy plus 2xy plus 2 -2 cancels, so that is 0, therefore the Laplace equation is satisfied, hence it represents the possible case of flow, okay। then similarly stream function का एक प्रॉब्लम है, psi equals to phi x minus 6y, इसमें फिर से हमें वेलोसिटी निकालना है, ओके, एंड रिजल्टेंट वेलोसिटी भी निकालना है, तो बेसिकली phi x equals to phi x minus 6y, del phi by del x करेंगे तो यहाँ पे 5 बच जाएगा, del phi by del y करेंगे तो -6 बच जाएंगे, ओके, therefore u equals to minus del phi by del y, so minus of -6 units, v equals to del phi by del x 5 units, then a resultant velocity under root of u square plus v square, so it is 7.81, okay, and direction उसके लिए tan theta inverse करेंगे, so tan theta equals to v by u, tan inverse of 5 by 6, okay। then last numerical, if for a two-dimensional velocity flow the velocity potential phi, okay, हमें phi दिया है, phi equals to x into 2y minus 1, okay, तो हमें वेलोसिटी निकालनी है एट पॉइंट p और स्ट्रीम फंक्शन साइन निकालना है, अभी phi दिया है, हमें साइन निकालना है, ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल phi equals to x into 2y minus 1, पहले u निकालेंगे, u equals to minus del phi by del x, ओके, सो आप डिफरेंशिएशन करोगे, सो इट इज 1 minus 2y। सिमिलरली v निकालोगे, सो v आता है -2x, उसके बाद में वैल्यू पुट कर दो, x इक्वल्स टू 4 एंड y इक्वल्स टू 5, ओके, तो आपको u और v का वैल्यू मिल जाएगा, ओके, उसके बाद में वेक्टर के फॉर्म में लिख दो और रिजल्टेंट वेलोसिटी निकाल दो। देन सेकंड स्ट्रीम फंक्शन निकालना है, तो अभी हमें पता है स्ट्रीम फंक्शन u का वैल्यू क्या होता है, del psi by del y, ओके, तो हम u del psi by del y इक्वल्स टू -u, बट -u का वैल्यू कितना है, यहाँ से हमने निकाला है 1 minus 2y, so it is minus of 1 minus 2y, so 2y minus 1, okay, और सिमिलरली del psi by del x भी होता है, और b कितना आता है, 2x minus 2x, so it is minus 2x, okay। now ये दोनों इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे, पहले इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे और ये del y को इधर ले जाएंगे, okay, so it will be integration of del psi equals to integration of 2 psi minus 1 dy, तो psi का इंटीग्रेशन psi होता है, और यहाँ पे 2y y स्क्वायर का होता है 2y स्क्वायर बाय 2 माइनस y, ओके, प्लस c। अभी यहाँ पे c का वैल्यू निकालना पड़ेगा, ओके, सो c का वैल्यू निकालने के लिए हम दूसरा इक्वेशन लेंगे, उसको हमने k बोला है c को, ओके, सो k का वैल्यू निकालने के हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो del psi by del x, सो यहाँ पे कुछ भी नहीं है x का टर्म, सो 0 हो जाएगा, सो del psi by del x इक्वल्स टू del k by del x, बट del psi by del x कितना होता है, -2x, तो बेसिकली del k by del x कितना हो जाएगा, -2x, तो यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे, सो k इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ -2x dx, सो -2x स्क्वायर बाय 2, सो -x स्क्वायर, सो k का वैल्यू -x स्क्वायर आ गया, हम ऊपर पुट कर देंगे, ओके, सो यहाँ पे y स्क्वायर माइनस y -x स्क्वायर, ओके, उसके बाद में पॉइंट पे बोला है तो पुट द वैल्यूज एंड फाइंड आउट द आंसर। So in this way we had completed our unit number